9th is matter around us pure. So in last class we studied chapter 1 and we studied about matter. Three states of matter, their physical and chemical properties. We studied their physical states, the difference between three states of matter. Okay, in this chapter we are going to study different kinds of matter, and we will classify matter on basis of chemical properties. So the title of the chapter is matter around us pure. So what does pure means here? Pure does not mean clean, clear, and without adulteration. Here प्योर मीन्स समथिंग एल्स. अगर दूध में मिलावट है तो दैट उस सेंस में प्योर. यहाँ पर प्योर का मीनिंग ये नहीं है कि उस चीज़ में कोई मिलावट नहीं है, कोई यहाँ पर प्योर का मीन्स ये नहीं है कि उस चीज़ में कोई मिलावट नहीं है या फिर उसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंस नहीं है. हेयर इन केमिस्ट्री प्योर सब्सटेंस मीन्स any substance that has only single one kind of particles. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, उसके अलावा कोई और पार्टिकल कि कोई और एलिमेंट या कंपाउंड उसमें नहीं है. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस के ही मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, सो अ प्योर सब्सटेंस इज़ वन दैट हैज़ ओनली वन सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स. So in first chapter we classified matter into three states: solid, liquid and gases, on basis of their physical state. Okay, now on the basis of chemical composition, on chemical properties, we classify matter into two types: pure substances and mixtures. Okay, so pure substances, you understand, one kind of particles. Mixtures can contain one or more kind of, two or more kind of particles. Okay, so we will study them in detail. Before that, pure substances are of two types: elements and compounds. Okay, and mixtures are of two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. We will study about them in detail one by one. Okay, so first of all, what is pure substance? A substance which consists of a single type of substance. Okay, that substance may be element or compound. For example, iron, copper, hydrogen, oxygen. Oxygen has only oxygen molecules. Water has only water molecules. Sugar has only sugar molecules. That is pure substance. Now, pure substance can be element or compound. Okay, so element and or compound, we will study about this later. So understand about pure substance. Now mixture. Mixture is a substance which consists of two or more pure substances. ओके, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर. सी वाटर में क्या है? वाटर है, उसके अलावा सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये मिक्सचर हो गया. ओके, सॉइल में भी मिनरल्स हैं, क्ले है. ठीक है, एयर. एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. ओके, एंड शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, दीज आर ऑल mixtures. Okay, and mixture we classify as homogeneous and heterogeneous. Another difference between pure substance and mixture is that pure is only pure. Okay, it cannot be broken into other substances by any physical process. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करना है तो हम फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, वी नीड सम केमिकल रिएक्शंस. लेकिन मिक्सचर कोई भी हो, जैसे सी वाटर है, एयर है, उसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं, जैसे इवेपोरेशन से, डिस्टिलेशन से. ओके, तो ये डिफरेंस हो गया. प्योर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जो मिक्सचर है उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ वो शो करेगा. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे और उन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को कैसे, किस फिजिकल प्रोसेस से हम अलग अलग कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स? सी, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. यू कैन सी हियर. तो होमोजीनियस को आपका मीनिंग अबाउट द होमोजीनियस विच हैज़ सेम कंपोजिशन, सेम, जो हर जगह पर सेम हो, दैट इज़ होमोजीनियस. हेटेरोजीनियस, दैट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. Okay, heterogeneous mixture has non-uniform composition. Okay, you can think about some examples. Pause the video और सोचिए कि क्या homogeneous mixture हो सकता है. देखिए, जब भी आप शुगर या सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हो तो वो मिक्सचर कैसा बन जाता है? ऐसा तो नहीं है कि शुगर एक जगह कम होती है दूसरी जगह ज़्यादा होती है, नहीं. शुगर हर
वाटर के हर पॉइंट पर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर. सिमिलरली मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, okay, and homogeneous mixture, and that kind of mixture is generally called a solution, okay, a solution of sugar in water, solution of salt in water, okay. These particles are so small, the particles of solution are so small that they cannot be seen by naked eye, we cannot see them, okay, and they are so small so they cannot be separated by filtration, okay. पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल जो है सेडिमेंट नहीं होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं, बल्कि आपने पढ़ा था अभी कि वो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. सो दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर प्रॉपर्टीज, यू कैन स्टडी अबाउट देम. हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज क्वाइट अपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ओके. दे कैन बी विजिबल बाय नेकेड आई, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, एंड और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इसके भी दो तरीके, दो टाइप्स होते हैं, उनमें भी डिफरेंस होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे. एग्जांपल्स क्या होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के? देखिए, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, सॉल्ट और सैंड का जब आप मिक्सचर बनाओगे तो वो होमोजीनियस नहीं होगा, उसकी कंपोजिशन अलग अलग रहेगी. मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फाइलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जब भी आप ऑयल और वाटर को मिलाते हो तो भी वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहता है, ऑयल जो है वो ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है, दैट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस, ओके. सो ट्रू सॉल्यूशन, जो होमोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा उसी में है ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances. So a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution has two parts, solvent and solute, okay. The component that is present in large amount is called solvent, less amount in solute, okay. So the component that is dissolved is called solute, and the component that dissolves other substance is called solvent. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, एंड सॉल्ट सॉल्यूट होगा. जो चीज़ ऐड करते हैं वो सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होती है, जिसमें ऐड करते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में होती है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सॉल्वेंट, ओके. सो शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन और वाटर का सॉल्यूशन होता है, आयोडीन इन वाटर जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ओके, दैट इज़ ऑल्सो सॉल्यूशन. तो अभी आपने जो होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वही ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके. उसके बाद है कोलॉइडल सॉल्यूशन. देखिए, जो आपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो आपने पढ़ा उसके दो टाइप होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, ओके. जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है. जो पार्टिकल्स हैं सबसे कम साइज होता है सॉल्यूशन में, उससे बड़ा जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में, और सबसे बड़ा साइज पार्टिकल्स का होता है सस्पेंशन में, ओके. सो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है. जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है दैट समटाइम्स लुक्स लाइक सॉल्यूशन, क्योंकि उसके पार्टिकल्स भी बहुत छोटे होते हैं. जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, तो इसीलिए वो सॉल्यूशन की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ मिल्क इन वाटर. जो मिल्क और वाटर जब ऐड करते हो तो आपको लगता है सॉल्यूशन है, बट वो सॉल्यूशन नहीं है. आपको दिखाई देगा मिल्क थोड़ा अलग दिखाई देगा, वाटर थोड़ा अलग दिखाई देगा, तो थोड़ा सा फर्क होता है सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ठीक है. तो मिल्क इन वाटर इज कोलॉइडल सॉल्यूशन. सिमिलरली एयर containing dust and smoke, okay, mixture of starch in water, mixture of egg albumin in water, these are all colloidal solution, okay. तो इसके पार्टिकल्स को भी हम आंखों से नहीं देख सकते, दिस कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ओके. ना ही हम इनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. सोल्यूट पार्टिकल्स इसमें भी सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है. सॉल्यूशन जो है स्टेबल होता है, सॉल्यूशन नहीं, जो मिक्सचर होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है. तो जो आपने अभी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी काफ़ी सिमिलर कोलोइडल सॉल्यूशन की भी होती हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ काफ़ी सिमिलर होता है, ठीक है. बट अनदर डिफरेंस इज दैट पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है. पार्टिकल्स कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट, इसके बारे में अभी आप डिटेल में पढ़ोगे. टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स,
ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं साइज़ उनका कम होता है, लेकिन दे कैन स्कैटर। जो अगर हम एक लाइट की बीम को, लाइट की रे को कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे, तो जो पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन में हैं, दैट विल स्कैटर, दैट विल चेंज द पाथ ऑफ द लाइट। ओके, लाइट की बीम आ रही है, उसको अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देती है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन में जो है मेन डिफरेंस आता है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई। आप इनको वैसे ही देख सकते हो, ग्लास में अगर सस्पेंशन है तो आप उसको देख सकते हो पार्टिकल्स को। सोल्यूट पार्टिकल्स को इजीली फिल्ट्रेशन से फिल्टर करके आप सेपरेट कर सकते हैं, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। तो एग्जांपल सोचिए क्या हो सकता है। यस, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर। जब भी आप सैंड को, सॉइल को वाटर में ऐड करते हो तो वो मिक्स नहीं होती है, उस क्लियरली जो है सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और फिल्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये भी जो है कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कभी कभी जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर होने की बजाय वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो स्कैटरिंग नहीं हो पाती। तो मेन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वही टिंडल इफेक्ट शो करता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल का साइज़ स्कैटरिंग के लिए सुटेबल होता है, स्कैटरिंग के कंड्यूसिव होता है। But suspension sometimes can scatter beam of light. So you can see about suspension. Okay, so first is solute particles can be separated by filtration. आपको दिख रहा है एक फिल्टर से सोल्यूट पार्टिकल्स को फिल्टर करके एक बीकर में कलेक्ट कर किया गया है। सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, जैसे आपने मिट्टी को या किसी सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाया, सस्पेंशन मिक्सचर आपने बनाया, तो सॉइल के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। ओके, और सोल्यूट पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये जनरली कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है। तो इस तरीके से जो अगर आप एक बीम ऑफ लाइट सॉल्यूशन से पास करेंगे तो पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ओके, जो स्कैटरिंग होती है जब लाइट की, तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, क्योंकि लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। तो इन दिस वे पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। सस्पेंशन, टिंडल इफेक्ट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, देखिए इसको। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन, द कोलॉइड पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ओके, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो कोलॉइड सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जिससे लाइट जो है पाथ उसका विजिबल हो जाता है। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब भी कोई लाइट एक स्मॉल होल से पास होती है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स पाथ बिकम्स विजिबल। इसमें देखिए विंडो से जो लाइट आ रही है एक डार्क रूम में, उससे जो है लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, यू कैन सी स्कैटरिंग इजीली। ओके, डेंस फॉरेस्ट में भी आप देख सकते हैं, लाइट को देख सकते हैं, लाइट की स्कैटरिंग को आप देख सकते हैं, है ना, दैट इज ड्यू टू पार्टिकल्स। ओके, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, तो इसको आप लर्न करेंगे अच्छे से। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आफ्टर दैट आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन पढ़ लिया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ लिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो आपने पढ़ा उसमें देर इज़ वन काइंड ऑफ टू काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल होता है। सॉल्यूशन में हम करते क्या है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर को वाटर में ऐड करते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो और ज़्यादा सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप हीट करते हो सॉल्यूशन को तो आप मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें ऐड कर सकते हो। Saturated solution is a solution
विच कैन नॉट डिजोल्व, दैट कैन नॉट ऐड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एट अ फिक्स टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हो, अगर आप हीट करते हो, तो हीट करते टाइम आप और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन को हीट करोगे तो आप और सोल्यूट और शुगर वाटर में ऐड कर सकते हो, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर पर अगर आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हो और सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हो। जैसे आपने एक ग्लास वाटर में एक स्पून जो है शुगर को मिलाया, ठीक है, शुगर मिल गई, उसके बाद आपने एक स्पून और मिलाया, तब भी शुगर मिल गई, तो अभी तक सॉल्यूशन क्या चल रहा है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, उसमें और सोल्यूट आप ऐड कर पा रहे हो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीनी जो है सेटल डाउन हो जाएगी, मिलेगी नहीं, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस पॉइंट पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, अगर आप उसको हीट करते हो, हीटिंग देते हो, तब आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में जिस सैचुरेटेड हो चुका है, जिसमें और सोल्यूट ऐड नहीं हो पा रहा है, उतना अमाउंट जो है इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप कैसे बना सकते हैं? सिंपल है, आप शुगर को, सॉल्ट को वाटर में ऐड कीजिए, जितना शुगर, जब तक शुगर ऐड हो रही है तब तक वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। उसके बाद अगर ऐड नहीं हो रही है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इफ़ मिक्सचर्स आर हीटेड इट डिजोल्व सम और मोर ऑफ द सोल्यूट। ओके, सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। ओके, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग सोल्युबिलिटी, अलग अलग अमाउंट में वो ऐड हो सकता है। और ऑल्सो आपको पता ही है कि टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी के हम बारे में हमने पढ़ा, सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा। तो नाउ कंसंट्रेशन, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन होता है कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट आपने ऐड किया है, तो वो हम मेज़र कैसे करेंगे, हाउ विल यू वी मेज़र। ओके, तो अगर आप ज़्यादा सोल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा। गाढ़ा मतलब कंसंट्रेटेड, इसका मतलब अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। अगर आपने थोड़ा ही सोल्यूट ऐड किया, वाटर में थोड़ा ही शुगर या सॉल्ट ऐड किया, तो वो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, है ना। कोई भी केमिकल, कॉपर सल्फेट आपने वाटर में डाला, आपने कम कॉपर सल्फेट डाला तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, कंसंट्रेशन उसका कम होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? सिंपल है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है। ओके, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो आप इसको मास बाय मास भी निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। मास बाय मास का मतलब है कि सोल्यूट का भी आप मास ले रहे हैं और सॉल्यूशन का भी आप मास ले रहे हैं। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूट का मास ले रहे हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से, मास से, ठीक है। बट सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन। सॉल्यूट जो है न्यूमरेटर में आएगा, सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके आप कंसंट्रेशन